Hello everyone, welcome to my channel. Bank PO from cipher to figure, English Mock 2. Today I have brought for you the questions of common error. तो ये टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. In Castletown, Rose met the doctor who wanted to know if Freddie was managing to keep off her ankle. The underlined words में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है. यदि है तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. And if there is no error, you have the option number E, no correction required. To keep off means avoid encroaching on, to avoid touching. और यहाँ एंकल को टच करने का सेंस है. It means the sentence is correct. There is no error in the underlined part. Hence the answer is number E, no correction required. The sentence, in Castletown Rose met the dog Freddie was managing to keep off her ankle. It's correct. Now let us come to question number 2. Don't give it in to despair. Just because you didn't get into the college which was at the top of your wish list. Don't give it into, it means किसी चीज को अंदर ले जाना. जबकि यहां डिस्पेयर वर्ब बताता है कि यू शुड कंटिन्यू योर स्ट्रगल. यू शुड नॉट सरेंडर. You should not cease fighting and struggling. You should not accept the defeat. Hence, there is an error in the underlined part. In place of give it into, it must have been give in to infinitive for the verb despair. The phrasal verb is give in. And such an option is number D, give into. Hence the correct sentence will now be, students, don't give in to despair just because you didn't get into the college which was at the top of your wish list. Now come to question number 3. It was dominated by Franklin Roosevelt, the cunning, determined, good-natured president called forth by the crisis of the Depression. Students, call forth means to couch something into action or into existence. यानी इन्हें एक्शन में लाया. Which one? Which thing? The crisis of the depression. And the meaning is absolutely correct. So there is no requirement of any correction at all. Call forth on का अर्थ होता है किसी चीज के लिए बुलाना. Called upon का मतलब किसी से जाकर मिलना. Called out अपॉन किसी विषय चुनौती देना, ललकारना. कॉल्ड आउट बाहर बुलाना. द अंडरलाइन पार्ट कॉल्ड फॉर्थ बाय इज करेक्ट. हेंस योर ऑप्शन विल बी नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 4. शाहरुख खान हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट for being detained by US authorities at Los Angeles International Airport. Remember,
डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, ये हमेशा एक पॉइंट, एक टारगेट दिखाता है और उसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन एट होता है, न कि फॉर। यहां प्रॉब्लम है। तो आइए एट के साथ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एट बीइंग डिटेन्ड, करेक्ट वन। फॉर होगा नहीं, बिकॉज ऑफ होगा नहीं, ओइंग टू बी डिटेन्ड होगा नहीं। यदि कारण देखा जाए तो बिकॉज और ओइंग टू हम ले सकते हैं, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम यहां आ रहा है, बिकॉज ऑफ बीइंग डिटेन्ड होना चाहिए था एंड ओइंग टू डिटेंशन होना चाहिए था। हेंस द सेंटेंस रिक्वायर्स करेक्शन एंड द राइट आंसर इज नंबर ए। Shahrukh Khan has expressed disappointment, his disappointment at being detained by US authorities at Los Angeles International Airport. Now let us come to question number 5. The teacher asked the pupils to get going at some work quietly as she had to leave the classroom. टीचर को क्लासरूम से निकलना था, तो बच्चे हल्ला ना करें। तो उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट से, अपने पीपल से, कि किसी काम को करना जारी रखो, यानी कंटिन्यू करने का सेंस है। टू गेट गोइंग एट सम वर्क, यहां कंटिन्यूएशन का सेंस नहीं दे रहा है। द फ्रेज इज नॉट रेलिवेंट, सो इट रिक्वायर्स correction. Let us examine the options. Number A, to get even with, किसी चीज के साथ साफ सुथरे ढंग से रहना, सिंपल वे में रहना। टू गेट होल्ड ऑफ, किसी चीज को पकड़ के रखना। टू गेट ऑन विथ, किसी काम को करना जारी रखना ताकि आप प्रोग्रेस करें, राइट ऑप्शन। टू गेट विंड ऑफ, हवाखोरी करना। This is not the meaning. आपका नंबर A, नंबर B and number D are useless here. So the right option is number C, to get on with. The teacher asked the pupils to get on with some work. At B यहाँ underlined होगा. To get on with some work quietly as she had to leave the classroom. Now come to question number 6. After our month long trip, महीने भर हम लोग बाहर रहे, लोकेलिटी में क्या कुछ हुआ, कौन आया कौन गया, इसमें हम लोग पीछे हैं, जानकारी नहीं है। It was neighbors and the news around town. पड़ोसियों के हालचाल क्या हैं, शहर का समाचार क्या है, ये जानने के लिए हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो हमसे इन चीजों में आगे है। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ होना। अतः यहां करेक्शन की आवश्यकता है। तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। कीप ट्रैक ऑन, किसी चीज के ट्रैक को फॉलो करना, दिस इज नॉट द मीनिंग। गेट गोइंग विथ, किसी के साथ चलते रहना, नॉट मैचिंग। कैच होल्ड ऑफ, किसी चीज के पकड़ को बना के रखना, दिस इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग, क्योंकि यहां मीनिंग है सक्सेस का। किसी व्यक्ति जो हमसे आगे है उसको पकड़ ले, उस समाचार को जान ले। तो राइट ऑप्शन आपका नंबर डी हो गया, टू कैच अप विथ। So mark it as your answer. Hence the sentence, the correct sentence should have been, after our month-long trip, it was time to catch up with the neighbors and the news around town. Now let us come to question number 7. Good instructors will look upon early signs of failure in their students. अब यहाँ इंस्ट्रक्टर्स है, मीन्स टीचर्स, स्टूडेंट्स के फेल्योर के अर्ली साइन को, इसका मतलब बहुत ही चौकस, केयरफुल रहना, यानी द सेंस इज दैट ऑफ बीइंग विजिलेंट एंड टेकिंग नोटिस ऑफ,
इसका मतलब लुक अपॉन का अर्थ होता है टू सी समवन विथ ऑनर, विथ रेस्पेक्ट। करेक्शन की जरूरत है यहां। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। अर्थ होना चाहिए उस फ्रेजल वर्ब का टू बी विजिलेंट एंड टेक नोटिस ऑफ। लुक इन, अंदर झांकना। लुक आउट फॉर बिल्कुल सही है, मीनिंग टू बी विजिलेंट एंड टेक नोटिस ऑफ। लुक फॉर, टू सर्च फॉर, ढूंढना। लुक अप विथ, बड़ी बेसब्री से किसी चीज को निहारना। राइट ऑप्शन आपका नंबर बी जा रहा है, मार्क कर दे इसको। टू लुक आउट फॉर, hence the sentence should have been good instructors will look out for early signs of failure in their students. Question number 8, if you talk towards someone in authority such as a parent or a teacher, you answer him in a rude way. इसका अर्थ बहस करना, जवाब लगाना। तो फिर ये टुवार्ड्स नहीं देगा बल्कि बैक, जो उसने कहा उसके बैक के फट से जवाब दे देना, यानी टू टॉक डिफाइंटली और इंसॉलेंटली, तभी वो रूड वे, रूड मैनर आएगा। इसका मतलब यहां करेक्शन की जरूरत है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। टॉक डाउन विथ, ऐसा कोई मीनिंग यहां नहीं आ रहा है। टॉक ओवर विथ, नो, इट इज यूजलेस, क्योंकि टॉक डाउन का मतलब होता है अपमानित कर देना, उस बात को दबा देना। टॉक ओवर विथ, किसी विषय पर खुलकर चर्चा करना। टॉक बैक टू, यस, टू रिप्लाई डिफाइंटली एंड इंसॉलेंटली। टॉक अराउंड ऑफ, it means to talk in a roundabout way in circumlocution. So right option is number C, talk back to. If you talk back to someone in authority such as a parent or a teacher, you answer him in a rude way. Now come to question number 9. Before we take this further, further हमेशा distance दिखाता है, जबकि यहां कोई मैटर है, अर्थात उससे आगे जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज एडिशनल टू दैट, इन एडिशन टू दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, यानी करेक्शन की जरूरत है। यहां फर्दर होना चाहिए था, नॉट फार्दर। ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो टेक दैट फार्दर, फार्दर इज नॉट पॉसिबल हियर। टेक इट फर्दर, फर्दर करेक्ट है, बट यहां किसी मैटर को पॉइंट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिस ही होता है, तो इट रॉन्ग होगा। टुक, ये तो ऐसे ही बाहर चला गया क्योंकि टेंस चेंज कर गया है। नंबर डी, टेक दैट फर्दर इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, सो मार्क इट। बिफोर वी टेक दैट फर्दर, दिस को चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन दिस के साथ फर्दर का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो हमें लेना होगा बिफोर वी टेक दैट फर्दर, लेट्स कंसीडर समथिंग द इंटरनेट हैज टॉट अस अबाउट आवरसेल्व्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. इट वॉज ग्रेट टू थिंक बैक ऑफ, नॉट जस्ट दैट एक्सपीरियंस, मतलब किसी चीज को रिकॉल करने का सेंस है, याद करने का सेंस है, तो रिकॉल करने के लिए बैक ऑफ नहीं, बैक ऑन करेक्ट होगा। सो करेक्ट फ्रेज आपका ऑप्शन नंबर ए, थिंक बैक ऑन। थिंक अबाउट is not the correct one. Think it through and think back about are also useless here. So right option is number A, think back on. It was great to think back on not just that experience but on why that film still resonates with the people. इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब्स को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनसे भी संबंधित कॉमन एरर्स के सवाल पूछे जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।